Good afternoon, students. Welcome to the session number 2 of JEE Physics. The chapter is Electrostatics, and today I will be discussing 3 questions which were asked in the JEE mains examination a few years back. So, the first question is written on this board. An infinitely long solid cylinder of radius r has a uniform volume charge density rho. It has a spherical cavity of radius r by 2. I have depicted this with the help of this figure here. On the axis of the cylinder, the magnitude of electric field at the point P, which is at a distance 2r from the axis of the cylinder, is given here. Value of K is 6. There are 4 options here, so we have to find the correct one. So they have already calculated the magnitude of the electric field, and now they are asking that what will be the value of K. So we have to find the magnitude of the electric field at this point P, which is at a distance of 2r from the axis of the cylinder. In this, this is an infinitely long solid cylinder having a uniform this volume charge density, and this cylinder has a spherical cavity of radius r by 2 as shown in this figure. And so in this case, first thing is that if there was no cavity in this infinitely long cylinder, then the value of this electric field intensity at the point P will be equal to E is equal to lambda upon 2 pi epsilon naught into the distance of that point from the axis of this cylinder. So ये हो गया आपका 2r. अगर कैविटी नहीं होती तो ये हो जाता, एंड लैम्डा है आपका, दिस इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ. चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है, चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है. ठीक है, अब हम क्योंकि यहाँ पे एक कैविटी है, तो इस कैविटी की वजह से क्या होगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट विल गेट रिड्यूस्ड बाय एन अमाउंट इक्वल टू द वन प्रोड्यूस्ड बाय दिस स्फेरिकल कैविटी. ठीक है, सो हम क्या करेंगे यहाँ पर ये एक इनफाइनेटली लॉन्ग सिलेंडर है, तो इसकी लेंथ, the length of this cylinder is infinite, but however, for the sake of calculation, I have taken the length of this cylinder as L. It can be, means अगर infinite है तो definitely it will be having some length. तो उसको मैं मान के मैंने इसकी जो लेंथ है वो मैंने L मान लिया है, और इसके ऊपर जो चार्ज Q है ये आपका दिस सिलेंडर के ऊपर, वो मैंने Q ले लिया. तो लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा विल बी इक्वल टू Q अपॉन L. If the charge on this cylinder is equal to Q and the length of this cylinder is L, तो lambda will be equal to Q by L. बट मेरे पास में क्या है, एक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है जो कि यूनिफॉर्म है. तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, दिया हुआ है रो, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, Q हमने बता दिया, Q है. ठीक है, और हाँ ये Q है, और आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी विल बी इक्वल टू द चार्ज डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम. वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एल. एल इज the length of this infinitely long cylinder. ठीक है, which I have considered in this question, and Q is the charge which is on the surface of this cylinder. ठीक है, so ये हो गया मेरा. अब यहाँ पर आप देखेंगे कि Q by L, ये जो Q by L है ये मेरा लैम्डा है. so ये हम इसको लिख सकते हैं लैम्डा बाई पाई आर स्क्वायर. ठीक है, सो लैम्डा की वैल्यू मेरी आ जाएगी यहाँ से, लैम्डा इज इक्वल टू रो इंटू पाई आर स्क्वायर. तो हम यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस इनफाइनेटली लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर, दैट विल, इसको मैं सिलेंडर लिख देता हूँ, दिस विल बी इक्वल टू लैम्डा की जगह हो गया रो पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ आपका फॉर्मूला है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r, दैट इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, 4 पाई. सो ये हो जाएगा आपका, ये कैंसिल हो जाएगा, r पाई भी कैंसिल हो गया. सो वी आर गेटिंग ये, दैट इज
रो आर डिवाइड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। तो ये होगी मेरी दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस इनफाइनेटली लॉन्ग सिलेंडर एट दिस पॉइंट P. But now because there is a dent, there is a spherical dent, so the net electric field at this point will get reduced by an amount equal to that generated by that spherical cavity. So let us say इसको हम लिख देते हैं E cavity, that is the electric field due to this spherical cavity will be equal to 1 by 4 pi epsilon naught. The charge in this cavity को मैंने QC कर दिया, divided by the distance of this point P from from the center of this spherical cavity. तो ये हो जाएगा मेरा 2R का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमें निकालना है QC। तो QC क्या होगा, डेंसिटी आपको दिस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पता है, रो है, तो दैट विल बी इक्वल रो इनटू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर यहाँ पे r/2 हो गया, तो r/2 का क्यूब हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, रो 4 पाई आर क्यूब है रो 4 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 8 इंटू 324, ठीक है, विच इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा, अगर हम इसको हटा देते हैं, इसको 4 हटा देते हैं सॉरी, तो ये हो जाएगा आपका 4/6, ठीक है, बिकॉज इट वॉज 4 डिवाइड बाई 24, सो मैंने इसको कर दिया रो पाई आर क्यूब, ये उतना डिवाइड बाई 6, ये QC की वैल्यू आ गई। तो ई कैविटी कितनी हो जाएगी, ई कैविटी मीन्स द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दैट स्फेरिकल कैविटी, ये हो जाएगा मेरा, इसमें QC की वैल्यू पुट कर दूंगा रो पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 6 नीचे आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 4R स्क्वायर, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, ये R बचा, पाई कैंसिल हो गया, एंड वी आर फाइनली गेटिंग रो R डिवाइडेड बाई 6 for 24 into 4 96 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P at the point P is equal to E cylinder minus E cavity. So ये कितना हो जाएगा मेरा, so this will be equal to ये हम लिखेंगे, इसकी वैल्यू है सिलेंडर की है रो R डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट माइनस रो R डिवाइडेड बाई 96, ये इसमें 96 जो है मेरा और एप्सिलॉन नॉट जो है वो LCM हो गया, एंड फाइनली वी विल गेट 24 रो R माइनस रो R, ठीक है ना, ये हो जाएगा 24 रो R माइनस रो R विच इज इक्वल टू 23 रो R, ठीक है। अब आप ये देखेंगे दी यहाँ पे मेंशन किया है दी मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P विच इज एट अ डिस्टेंस 2R फ्रॉम द एक्सिस ऑफ सिलेंडर इज 23 रो R डिवाइडेड बाय 16 K एप्सिलॉन नॉट। तो 23 रो R तो ये हमारा भी आ गया ऊपर, ठीक है, या नीचे है 16 K एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे भी है, सो 16 K इज इक्वल टू 96, तो हम इसको लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू 23 रो R 16 K, तो 16 इंटू 6 इंटू रो सॉरी इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहां पर मेरी जो K की वैल्यू इट इम्प्लाइज दैट K इज इक्वल टू 6, ये देखिए दिस K की वैल्यू मेरी 6 आएगी। सो द आंसर इज द first one, that is the first alternative, that is A is equal to, so this is the first alternative which is 6. So this is how we have to find the value of K. यहाँ पे इस जो सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेप था वो यही था कि यहाँ पर मैंने इस इनफाइनेटली लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर की लेंथ को लिया है, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द
वैल्यू ऑफ लेमडा, लेमडा को निकालना है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इनफाइनाइट लेंथ है डेफिनेटली, बट डेफिनेटली इनफाइनाइट के मतलब बहुत ज़्यादा लंबा आपका सिलेंडर है, सो डेफिनेटली इट हैज़ टू हैव सम लेंथ। तो उस लेंथ को मैंने ले लिया एल, उसके ऊपर जो चार्ज है वो क्यू ले लिया, तो वो हमारा लेमडा आ गया क्यू बाई एल। देन दिस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगा, क्यू बाई पाई आर स्क्वायर एल, वेयर आर इज द दिस रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर। तो ये एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू एल, ये इंटू एल हो गया। नाउ क्यू बाई एल जो है वो लेमडा हो गया। सो लेमडा हैज बीन कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद में तो आप ई सिलेंडर निकाल सकते हैं, ये आप ई कैविटी दैट इज दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस ये स्फेरिकल कैविटी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। दी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस इनफाइनेटली लॉन्ग सिलेंडर वो भी आप निकाल सकते हैं। इसके बाद में हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, ई सिलेंडर माइनस ई कैविटी कर दिया, and then we have compared our answer with this one, and finally we got the value of k as 6. So this is the answer, that is the option number A. Now let's move on to the second question. Second question is, yes, a charge q is divided into q and q. A charge q, capital Q, is divided into small q and q minus q. If यहाँ पे लिखा हुआ है if q upon q is equal to x, then for the maximum value of repulsion, for the maximum value of repulsion between them, value of x is, चार ऑप्शन हैं, 1, सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है B2, C दिया हुआ है 3 एंड D दिया हुआ है 4। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो वी हैव टू फाइंड दी अ चार्ज Q, कैपिटल Q इज डिवाइडेड इनटू Q एंड Q माइनस Q हो ही जाएगा। सो ये कह रहे हैं कि इफ Q अपॉन Q इज इक्वल टू x है, देन फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिपल्सिव फोर्स, या रिपल्शन लिखा हुआ है यहाँ पे, फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिपल्सिव आप लिख सकते हैं, फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिपल्सिव फोर्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ repulsive force, ठीक है। So then for the maximum value of repulsive force between these two charges, the value of x कितनी होगी? So the maximum, the first of all is we have to write the formula for this electrostatic force between these two charges. Now since both these charges are like charges, means both these charges are positive, so there will be a repulsive force between them. So it will be equal to, the magnitude will be equal to q minus q divided by d square, where d जो है, d is the distance separating them, distance between them, ठीक है ना, ठीक है, where d is the distance which is separating them. So अब हमें निकालना है, so for the maximum value of repulsive force, dF upon dq is 0. This is the only thing which you have to do. तो यहाँ पे हम जो है, we will just differentiate this f with respect to q. So we will get, it implies that dF upon dq is equal to, अब ये देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट ही हो गया, तो इसको मैं एक जगह ले लेता हूँ, मतलब इसको हम एक जगह ले लेंगे, तो ये हमारा बचेगा क्या, दिस वन। अगर हम इसको ऐसे लिख लेते हैं,
मान लीजिए यहाँ पे डी स्क्वायर कर दिया मैंने, ठीक है ना, ये हो गया, ऐसे लिख दिया, तो ये वाला कांस्टेंट हो गया। सो डी एफ अपॉन डी क्यू क्या हो जाएगा, क्यू क्यू माइनस क्यू, इसका जो स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू का जो ये हो जाएगा मेरा क्यू आ जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस टू क्यू, दैट इज क्यू स्क्वायर का हो गया माइनस टू क्यू, विच शुड बी इक्वल टू जीरो। सो इट इम्प्लाइज दैट क्यू इज इक्वल टू टू क्यू और क्यू अपॉन क्यू इज इक्वल टू टू, ये क्यू अपॉन क्यू। सो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स विल बी इक्वल टू टू। सो फॉर द मैक्सिमम repulsive force between these two charges, the value of x will be equal to 2. So the option B is correct. Now we will take the last question for the today's session, and that is yes. The question is two concentric metallic sphere metallic hollow sphere of radius r and 4r hold charges q1 and q2, have charges q1 and q2 respectively. ठीक है, given that the surface charge density of the sphere are equal, surface charge density is equal, surface are equal. The potential difference between the two spheres is, ऑप्शन दिए हुए हैं 3q1 divided by 16 pi epsilon naught by r। फिर एक और ऑप्शन है आपका 3q1 divided by 4 pi, फिर a b c दिया हुआ है q2 4 pi epsilon naught r, एंड d दिया हुआ है 3q1 4 pi epsilon naught r। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें है ये, इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, देयर आर टू कॉन्सेंट्रिक मेटालिक होलो स्फीयर, कॉन्सेंट्रिक के मतलब है हैविंग द सेम सेंटर, दोनों के सेंटर सेम है, ऐसे हैं। तो ये आपका सेंटर हो गया इसका, लेट अस से आई एम दिस डिनोटिंग द इनर वन एज ए एंड द आउटर वन एज बी। अब इसका जो है रेडियस है आर है, इसका जो बाहर वाले का रेडियस दिया हुआ है 4r। दोनों की चार्ज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ बोथ द स्फीयर्स आर इक्वल। पोटेंशियल निकालना है बिटवीन द टू स्फीयर, दैट इज वी हैव टू फाइंड द
वैल्यू ऑफ वी ए माइनस वी बी, ये हमें निकालना है. दिस इज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट. सो नाउ यहाँ इसके ऊपर जो चार्ज है वो है Q1, इसके ऊपर जो चार्ज है वो है Q2. ठीक है. सो अभी हम सबसे पहले निकालेंगे VA. तो VA हमारा कैसे हो जाएगा, VA विल बी इक्वल टू, एक तो इस चार्ज की वजह से होगा, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है. इसको एक काम करते हैं, मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं लिख देता हूँ K. ठीक है. इसको मैंने K लिख दिया और ये हो जाएगा Q1 डिवाइडेड बाई R प्लस दी ये जो चार्ज, ये जो बाहर का जो जो स्फीयर है जिसके ऊपर चार्ज Q2 है, इसके वजह से भी एक यहाँ पे आपका पोटेंशियल होगा विच इज इक्वल टू K Q2 डिवाइडेड बाई 4R. ठीक है. तो दिस इज द पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर A. अब हमें निकालना है VB. नाउ यहाँ चार्ज आपका Q1 है. नाउ दिस चार्ज Q1 क्या करेगा, इट विल इंड्यूस अ नेगेटिव चार्ज ऑन द इनर सरफेस और यहाँ ऑन द इनर सरफेस ऑफ दिस स्फीयर B. तो यहाँ पे हो जाएगा -Q1 और आउटर. नाउ दिस नेगेटिव चार्ज विल इंड्यूस अ पॉजिटिव चार्ज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द स्फीयर B. तो ये हो जाएगा आपका Q1. ठीक है. So the potential on the surface of this outer sphere B will be equal to K Q2 upon 4R plus K क्या है यहाँ पे, this is a constant which I have replaced it. K is equal to 1/4 pi epsilon naught. ठीक है. मैंने यहाँ पे K लिख दिया इसको. तो ये हो जाएगा K Q1 डिवाइड बाई 4R. ठीक है. आउटर सरफेस के ऊपर कौन, जो B का जो आउटर सरफेस है उसके ऊपर चार्ज हो गया आपको Q1 प्लस Q2. सो ये हो गया आपका. तो सो द पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर B इज इक्वल टू K Q2 बाई 4R प्लस K Q1 बाई 4R एंड द पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ A इज इक्वल टू K Q1 बाई R प्लस K Q2 बाई 4R. ठीक है ना. इस चार्ज की वजह से भी जो है आपका यहाँ पे एक पोटेंशियल आपका डेवलप होगा स्फीयर A के ऊपर. तो अब हमें निकालना है VA माइनस VB. तो लिख देते हैं यहाँ पर VA माइनस VB. दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस विच इज इक्वल टू K Q1 डिवाइडेड बाई R प्लस K Q2 डिवाइडेड बाई 4R माइनस K Q1 बाई 4R प्लस K Q2 बाई 4R. यही है ना. हाँ. सो फाइनली इसमें हमारा आंसर आ जाएगा. ये देखिए K Q2 बाई 4R एंड K Q2 बाई 4R ये कैंसिल हो जाएंगे जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे. अल्टीमेटली हमारा बचेगा K Q1 बाई R माइनस K Q1 बाई 4R. तो K हमने कॉमन ले लिया, सॉरी K बाई R कॉमन हो गया. सो अल्टीमेटली वी आर गेटिंग इज 4Q1 माइनस Q1 दैट इज इक्वल टू 3Q1 बाई 4. ठीक है. अब हमारा आंसर कितना हो जाएगा, K की जगह पे हम लगा देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R. ये हो जाएगा 3Q1 डिवाइडेड बाई 4. सो दिस इज इक्वल टू 3Q1 divided by 4 pi epsilon naught of epsilon naught R. So the potential difference between these two spheres is equal to 3Q1 divided by 16 pi epsilon naught R. ठीक है. और आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा 3Q1. So this is the correct answer, that is the option number A. So these are the three questions which I have taken from the JEE mains examinations which were conducted a few years back, and this is all for today's session. And in the next session we will be again coming up with 3 or 4 questions, but those questions will be entirely different from what we have studied so far.
ठीक है. So the chapter will be electrostatics, and probably in a couple of days from now I will be discussing um, 3 or 4 questions in the next session, that is in the session number 3. And I hope that you have understood the method of working out these numericals. And if you have any questions, definitely you can just contact me on my mobile number, my WhatsApp number, or my email address also. And thank you very much for joining this session, and have a nice day. We will meet soon.